Hello everyone, my name is Lokesh Kumar and today I am going to introduce you to Pandas. Pandas is powerful tool in Python for working with data. Panda make it easy to handle and analyze data like a pro. Even if you are a beginner, in this session we will learn how to create and work with data and do some simple tasks like sorting, filtering and adding new information. So let's get started and explore how Panda can help us with data. Okay. So in this particular first slide, I will explain what is the meaning of pandas. So pandas is the one of the most popular library for data manipulation and analysis. Okay, with the help of panda, you can handle data in tabular form similar to separate sheet. When I will talk about the key data structure of pandas, so this is basically dividing in two parts. First is the series, second is the data frame. Okay, what is the meaning of series? This is called the one dimension array, and what is the meaning of data frame? This is called the two dimension array. When I will talk about what will be learned in this particular session, so just I will cover working with series and data frame, sorting, filtering and transforming data, handling missing data, and merging and joining data. Okay, so when you want to start the pandas, before start the pandas, you can install the libraries. Okay, so first you want to install the pandas, then you can use the pip install pandas. After install this library, you can import this particular library. So import is my one keyword, pandas is my library name, age is also my keyword, pd is short name of pandas. इस pd की जगह पे आप किसी भी चीज का आप नाम लिख सकते हो, आप अपना भी नाम यहाँ पे यूज कर सकते हो. ओके, so after that you want to check the version, so then you can use the pd.version. Okay, so working with panda series, first working with panda series. So what is the meaning of panda series? So this is the one dimension array that can hold various data type like integer, string and float. What is the meaning of integer? With the help of integer you can store number like 1, 2, 3. Okay, this is called the integer. What is the meaning of string? You can store the alphabet like a, b, okay, c. This is called the alphabet. What is the meaning of float? You can store the decimal value like 1.0, 2.0. Okay, this is called the float. In this particular series, mutable in term of its values, but its size is fixed once defined. Means I will give the one example. I will create the one list 1, 2, 3, 4. So in this particular case, this particular list size is, when I will talk about the length of this list is 4. Okay, आप सीरीज की जब बात करते हो, उस सीरीज के अंदर अगर आपने एक बार इसकी साइज को फिक्स कर दिया, मीन्स यहाँ पे इसकी साइज फिक्स हो चुकी है 1 2 3 4, तो इसको आप चेंजेस नहीं कर सकते. मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसको 5 और एड ऑन करना चाहूँ, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. बट इसके अंदर क्या है, आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो. मीन्स 2 की जो चीज़ें हैं, जैसे 2 को मैं 10 से रिप्लेस करना चाहता हूँ, ये पॉसिबल है. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि व्हेन यू फिक्स द साइज, अगर आपने एक बार साइज फिक्स कर दी तो यहाँ पे इसको आप चेंजेस नहीं कर सकते हो. बट जो इसकी वैल्यूज है, जो वैल्यूज हमने स्टोर किया, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो. ओके, एंड देन यहाँ पे अभी हम क्रिएट करना सीखते हैं सीरीज की कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो फर्स्ट आई विल क्रिएट द डेटा इन अ हेल्प ऑफ लिस्ट. सो डेटा इज माई वेरिएबल नेम एंड दिस इज माई वैल्यूज. ओके, दिस इज माई वैल्यूज. इस वैल्यूज को किस फॉर्मेट में स्टोर किया हमने? लिस्ट के फॉर्मेट के अंदर स्टोर किया. ओके, एंड देन आई वांट टू प्रिंट दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सीरीज. सो सीरीज इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज. इन दिस पर्टिकुलर केस जब भी आप सीरीज यूज करोगे तो एस आपका हमेशा कैपिटल होना चाहिए. अगर आपने स्मॉल लिखा तो वो आपका प्रिंट नहीं होगा. और डेटा मीन्स यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं कौन से? इस पर्टिकुलर डेटा को. आप यहाँ पे इसका आउटपुट देखोगे तो आउटपुट आपका इस टाइप से आएगा. ये आपका इसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग नंबर रहता है. मींस जब भी आप लिस्ट के सीरीज की बात करोगे तो इसमें डेटा हमेशा कंपलसरी रहता है, जो हमने अभी कॉल किया. इसके बाद में ओके, यहाँ पर आप इंडेक्सिंग नंबर भी दे सकते हो, जो नीचे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को. इंडेक्सिंग नंबर भी आप डिफाइन कर सकते हो, बट दिस इज ऑप्शनल. अगर आपने नहीं दिया तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 0 1 2 3 1 2 3 4 5 3 एंड 4.
अब ये आ गया आपका इंडेक्सिंग नंबर, और इंडेक्सिंग नंबर के आगे जो आपकी वैल्यूज होगी, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 100, यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 300, और यहाँ पे आ जाएगा 400, और यहाँ पे आ जाएगा 500। ओके, सो इसका इंडेक्सिंग नंबर हमारा जब भी स्टार्ट करता है इंडेक्सिंग नंबर, तो हमारा वो 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, डन, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल रिमूव दिस वन। ओके, अब आप चाहते हो कि एग्जैक्टली हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, जो वहां पे अभी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग वैल्यूज आ रही थी जिससे 0 1 2 3 4, उसकी जगह हम कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। मीन्स हम वहां पे क्या करना चाहते हैं कि जो इंडेक्सिंग नंबर है उस इंडेक्सिंग नंबर को हम अपने से प्रिंट करवाना चाहते हैं। मीन्स इंडेक्सिंग नंबर हम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने अगेन एक कॉलम क्रिएट किया कस्टम इंडेक्स, और ये हमारा क्या हो गया, एक लिस्ट के अंदर स्टोर किया। देखो अभी यहाँ पे हमने अल्फाबेट, यहाँ पे नंबर हमने इंटीजर स्टोर किया, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने लिख दिया 100 200 300 400 500। But when you want to store as a string, then you can use the comma, inverted comma, then Amit. So this is my first indexing number, second, third, fourth, fifth. Okay, और इसको प्रिंट कैसे करेंगे, सीरीज कॉलम सीरीज कस्टम इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज। यहाँ पे देखो अगेन एस कैपिटल होनी चाहिए, अदरवाइज आपको एरर आएगा। अब यहाँ पे हमने अभी पहले बताया था कि डेटा इज कंपलसरी, इंडेक्सिंग कस्टम इंडेक्स इज ऑप्शनल। अगर ये आप क्रिएट करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसके अंदर वैल्यूज आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स कस्टम इंडेक्स इक्वल्स टू किसको कॉल किया, कस्टम इंडेक्स को। तो यहाँ पे अमित, सीता, राहुल, प्रिया, अर्जुन हमारे पास ऑटोमेटिकली आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे अमित मेरा इंडेक्सिंग नंबर 1 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 100। ओके, सीता मेरा इंडेक्सिंग नंबर 2 है, इसका वैल्यू क्या आएगा 200। देन ये इसी टाइप से चलता रहेगा, लास्ट में अर्जुन आ जाएगा और अर्जुन की वैल्यू क्या आ जाएगी 400। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी पर्टिकुलर सीरीज हुई ना, इस सीरीज से मैं वैल्यू को असाइन करना चाहता हूं, एक्सेस करना चाहता हूं वैल्यूज को। जैसे आपने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया, एक उस लिस्ट से आप चाहते हो कि जो 200 नंबर का एम्प्लॉय है या 200 नंबर पे जो भी वैल्यूज आ रही है ना, मैं उसको कॉल करूं। तो यहाँ पे कॉल करने का क्या पैटर्न है, सिंपल, आप लिखोगे सीरीज, देन उसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट करोगे और लिस्ट के अंदर 2 कॉल करोगे। तो 2 कॉल करने पे क्या आ रहा है 300। क्यों आ रहा है ये, बिकॉज ये स्टार्टिंग जब भी हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं 0 1 2 3 आ रहा है एंड 4। तो यहाँ पे 2 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है 300। तो इसका आउटपुट हमारा क्या आ रहा है 300। देखो इंडेक्सिंग में भी 2 टाइप से इसको डिवाइड किया, एक तो होता है हमारा पॉजिटिव इंडेक्स, एक होता है हमारा नेगेटिव इंडेक्स। ओके, तो अभी हमने कॉल किया पॉजिटिव इंडेक्स को। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर हम -2 लिखते हैं तो वहां पे आउटपुट क्या होगा, ये हमारा स्टार्ट होगा -1 -2, उस केस में आपका आउटपुट आएगा 400। ओके, आई थिंक ये आपका क्लियर होगा। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमने पांडास के 2 पार्ट देखे थे, फर्स्ट इज अ सीरीज, सेकंड इज अ डेटा फ्रेम। ओके, अब व्हेन आई विल टॉक अबाउट द डेटा फ्रेम, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा फ्रेम। So data frame is 2-dimensional data structure with label access like row and column, इसके अंदर आता है। and this is the mutable in both data and size, means जैसे हमारे लिस्ट के अंदर एक लिमिटेशन थी कि अगर आपने एक बार साइज फिक्स कर दिया तो उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, बट इसके अंदर आप साइज कर दिया तो उसके बाद भी आप वैल्यूज को चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे हमने पांडास के अंदर डेटा को जो स्टोर किया है वो एक डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर किया। अब डिक्शनरी का क्या पैटर्न है, डिक्शनरी के अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ की पेयर फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया वेरिएबल नेम, हमने यूज किया डिक्शनरी का सिंबल। यहाँ पे फर्स्ट दिस इज माई की, दिस इज माई की, और यहाँ पे हमने क्या, इसके डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को हमने स्टोर किया एज अ लिस्ट फॉर्मेट के अंदर। बहुत सी बार क्वेश्चंस ये पूछ लिया जाता है कि क्या डिक्शनरी के अंदर हम लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं, या दिस इज पॉसिबल। अभी हमने यहाँ पे किया है। सो यहाँ पे क्या है, मेरा नेम इज द की एंड दिस इज माई वैल्यूज। सो अमित, सीता, राहुल, प्रिया, अर्जुन, दिस इज माई वैल्यूज। ये फर्स्ट की हो गया। देन आई वांट टू आल्सो क्रिएट द सेकंड की जिसका नाम हमारा एज है और इसकी वैल्यूज हमारी ये वाली वैल्यूज होगी। देन आई विल क्रिएट द वन की सीटी जिसमें हमने ये वाली सारी चीजों को कॉल किया। अब यहाँ पे अगेन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि पांडास के अंदर जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर भी डेटा हमारा कंपलसरी है, मीन्स डेटा होना ही चाहिए
रिमेनिंग पार्ट जैसे इंडेक्सिंग हो गया, देन कॉलम हो गया, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है। ओके, तो यहां पे अगर इसको हम कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे, df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। pd क्या है, सोर्ट नेम ऑफ पांडास, डेटा फ्रेम हमारा टाइप्स है ना। पांडास के 2 टाइप्स बताए थे ना, जिसमें एक सीरीज एक डेटा फ्रेम है, डेटा स्ट्रक्चर के। ओके, तो डेटा फ्रेम सेकंड पार्ट, और क्या किसको कॉल कर रहे हैं, डेटा को। ओके, अब इसका आउटपुट हमारे पास किस फॉर्मेट के अंदर आएगा, इसका आउटपुट हमारे पास आएगा, एक कॉलम बनेगा आपका नेम वाला, एक कॉलम बनेगा आपका एज वाला, ओके, और एक कॉलम बनेगा आपका सीटी वाला। नेम वाले में क्या आएगा, नेम वाले में जितने भी नाम है, जैसे यहां पे एक एक मैं बना के दिखा देता हूं कि नेम वाले के अंदर यू कैन स्टोर नेम, एज में यू कैन स्टोर द एज वैल्यू, सीटी के अंदर यू कैन स्टोर द सीटी वैल्यू। अब यहां पे इंडेक्सिंग नंबर क्या आएगा, यहां पे बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग नंबर आएगा मेरा, वो इंडेक्सिंग नंबर आएगा 0 1 2 3। ओके, इस टाइप से मेरा इंडेक्सिंग नंबर आएगा। अगर यहां पे इंडेक्सिंग नंबर को जैसे हमने सीरीज में क्रिएट किया, तो यहां पे आप क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप यहां पे इंडेक्स इक्वल्स टू जो भी आपको नंबर देना है वो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। क्लियर। अब मैं यहां पे चाहता हूं कि मैं यहां पे एक्सेसिंग करना चाहता हूं किसको, कॉलम्स एंड रो को। ओके, तो मैंने यहां पे बाय डिफॉल्ट लिखा कि df नेम, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे नेम वाला जो भी वैल्यूज है मेरा वो एक्सेस हो जाएगा। ओके, अब यहां मैं एक्सेस करना चाहता हूं इसको रो को, तो देन इंटीजर ऑफ LOC, और यहां पे 1 नंबर की चीज को मैं यहां पे प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो यहां पे 1 नंबर में क्या आएगा, ये मेरा इंडेक्सिंग नंबर 0 है, ये मेरा 1 है, तो 1 नंबर के अंदर सीता 24 दिल्ली, ये मेरा आउटपुट आएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। चलो हम आगे चलते हैं। अब एग्जैक्टली ये चीजें तो हमने देख ली कि डेटा को हम 2 टाइप से स्टोर कर सकते हैं पांडास के अंदर। अब वो स्टोर करने के बाद में क्या क्या चीजें हम चेंजेस कर सकते हैं, कि उसके अंदर मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं डेटा का। सो बेसिक डेटा मैनिपुलेशन, जिसके अंदर हमारा सोर्टिंग आता है। सोर्टिंग का मीन्स क्या है, आप वैल्यूज को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वैल्यू के अंदर शो कर सकते हो। जैसे अभी हमने वहां पे कॉलम क्रिएट किया था जिसका नाम एज था। ओके, तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम के अंदर हमने की वर्ड यूज किया जिसका नाम सोर्ट है। ओके, सोर्ट वैल्यूज, किसको सोर्ट करना चाहते हैं, वैल्यूज को सोर्ट करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, एज वाले कॉलम से। क्या करना चाहते हैं, असेंडिंग करना चाहते हैं। असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, मींस यहाँ पे डिसेंडिंग फॉर्मेट के अंदर वो आ जाएगा। ओके, देन अगेन नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हम डेटा को क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। अब फिल्टर करने का मीन्स, जैसे आपने एमोजन की साइट या कोई भी साइट ओपन किया तो वहां पे देखते हो ना कि मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का नाम दिखता है। जैसे एप्पल, मान लीजिए आप शूज प्राइस कर रहे हो, तो वहाँ पे पुमा के भी दिखेंगे आपको, देन एडिडास के भी दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के दिखेंगे। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, फिल्टर कर देते हो कि मुझे ओनली पुमा कंपनी के ही शूज चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सेम चीज़ यही कर रहे हैं। हमने क्या किया कि फिल्टर किया किसको, एज को, कि हमारे पास वही डेटा शो होना चाहिए जिसकी एज क्या हो, 30 से ज़्यादा हो। ओके, ये अभी हमने यहाँ पे कॉल किया है। ओके, अब मान लीजिए इसके, ये हमारा फिल्टर हो गया। अब यहाँ पे एडिंग एंड मॉडिफाइंग द कॉलम, मैं यहाँ पे कॉलम्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा डीएफ सैलरी। ये मेरा कॉलम हो गया जिसका नाम सैलरी हो गया, ये मेरी सैलरी हमने डिफाइन कर दिया। ओके, अब इस सैलरी को मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ और मॉडिफाई हो जाए। मीन्स मैंने जो ये कॉलम लिखा है इसको मैं कुछ क्या चाहता हूँ कि मैं 10% का इंक्रीमेंट हर एक एम्प्लॉय के ऊपर लगाना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1.10 को सैलरी वाला जो कॉलम है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा ये डेटा क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। ओके, अब बहुत सी बार अगर आप डेटा में काम करते हैं तो डेटा में भी अगर आपने काम किया है तो बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि आपने डेटा डाउनलोड किया, फाइल डाउनलोड किया, वहाँ पे बहुत सी बार मिसिंग वैल्यू आ जाती है। अगर मिसिंग वैल्यू आ गया तो डेटा का आप कैसे एनालिसिस करोगे, डेटा पे कैसे मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज होती है उस मिसिंग वैल्यू को किसी न किसी चीज़ से हमको रिप्लेसमेंट चाहिए होता है। सो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जब भी हम किसी भी डेटा सेट के अंदर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे सारे डेटा सेट को 1 बाय 1 चेक करना, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स रहता है जिसको हम यूज करते हैं, फिलिंग मिसिंग वैल्यूज। उस मिसिंग वैल्यूज को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया।
दिस इज कॉल्ड माई वेरिएबल नेम, और यहाँ पे हमने df विथ na फिल नाउ, ओके। और इसको किससे फिल कर रहे हैं, मिसिंग वैल्यू को किससे फिल कर रहे हैं, मीन्स NaN मीन्स नोट, जो नोट अवेलेबल वैल्यूज हमारी वहाँ पे, उसको हम किससे फिल कर रहे हैं, अननोन वैल्यू से, ओके। डिपेंड ऑन डेटा सेट, बहुत सी बार हम मीन लेके उस वैल्यू को फिल करते हैं, या फिर वहाँ पे डिपेंड ऑन कंडीशंस के एक्जैक्टली डेटा कैसा प्रेजेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं। या फिर ड्रॉप करना चाहते हो रो विद द मिसिंग वैल्यूज, ओके, तो उसको ड्रॉप कैसे करते हैं, तो देन df विथ na ड्रॉप नाउ, ये कीवर्ड हम यूज करते हैं, ओके। फिल करना चाहते हो देन यू कैन यूज दिस वन, ओके। और ड्रॉप करना चाहते हो तो उस कंडीशन में हम इस वाले कीवर्ड का यूज करते हैं। सो ये क्या कवर हो गया हमारा, हैंडलिंग मिसिंग डेटा, ओके। देन नेक्स्ट मर्ज द डेटा, एग्जैक्टली ये क्या कहाँ काम आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्जिंग द डेटा फ्रेम मर्जिंग। सो दिस इज द सेम सिमिलर टू वर्क द एसक्यूएल अगर आपको आइडिया है, सो दिस इज द वन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टू टेबल्स टू डेटा स्ट्रक्चर को ज्वाइन करते हैं। सेम एज वेल यहाँ पे भी वही वर्क कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन ऑपरेटर इंप्लीमेंट करते हैं जिसमें कंबाइनिंग डेटा फ्रेम ऑन कॉमन कॉलम इंडेक्स, मीन्स वहाँ पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो मेरी टू टेबल्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, जैसे ये एग्जांपल हमने अभी क्रिएट किया कि ये डेटा फ्रेम 1 मैंने क्रिएट किया, ये मेरा डेटा फ्रेम 2 है, ओके। इस डेटा फ्रेम के अंदर हमने क्रिएट किया आईडी, ये मेरा डेटा हो गया, नेम, ओके, ये मेरा ये कॉलम हो गया, दो कॉलम हमने यहाँ पे क्रिएट किया, एक तो आईडी हो गया, एक नेम हो गया, ओके। df2 के अंदर भी एक आईडी क्रिएट किया, एक एज हो गया। तो जब भी आप इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम कॉलम के बेस पे कर सकते हैं, इंडेक्स के बेस पे कर सकते हैं, ओके। अब जैसे डिपेंड ऑन जॉइंस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे इनर जॉइन है, आउटर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे, मैंने दो ही जॉइन यहाँ पे बताया, बाकी मैं आई विल एक्सप्लेन यू। सो फर्स्ट आई विल इंप्लीमेंट द इनर जॉइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर जॉइन, यहाँ पे हम फर्स्ट जो हम इंप्लीमेंट किया, हमने पहले दोनों डेटा फ्रेम को मर्ज किया, ओके, pd.merge df1, दिस इज कॉल्ड द df1, df2, दिस इज कॉल्ड द df2, ऑन किस बेसिस पे, आईडी के बेसिस पे मर्ज किया इन दोनों को, ओके। देन क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इनर जॉइन। अब एग्जैक्टली इनर जॉइन क्या होगा, एक ये डेटा सेट है आपका, एक ये डेटा सेट है, इसको df1 में बोल देता हूं, df1 में इसको बोल देता हूं, दिस इज कॉल्ड द df2, ओके। तो यहां पे आपका आउटपुट क्या होगा, जो एग्जैक्टली ये वाली जो सिमिलरिटीज है ना, ये आपका आउटपुट होगा, ओके। दिस इज कॉल्ड द इनर जॉइन। लेफ्ट जॉइन के अंदर क्या होगा, अगर आप यहाँ पे हाउ इक्वल्स टू लेफ्ट लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट टेबल कौन सी है, मैं अगर इधर से देखूंगा, ये मेरी लेफ्ट टेबल है। इस कंडीशन में क्या होगा, जितना भी डेटा मेरी लेफ्ट वाली टेबल के अंदर है वो सारा का सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा, इतना सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा। राइट का क्या होगा, ये वाला सारा डेटा मेरा राइट का आ जाएगा, ओके। देन फाइनली आउटर जॉइन मीन्स, आउटर जॉइन जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो पूरा जितना भी इस टेबल के अंदर डेटा प्रेजेंट है वो सारा का सारा डेटा मेरे पास सो